हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्याम अनावत एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेस लेक्चर। हम लोग एक नया चैप्टर, नया सीरीज शुरू करने वाले हैं। द चैप्टर नेम इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। या आई नो मोस्ट ऑफ यू हैव फियर अबाउट दिस चैप्टर। स्कूल में हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आया नहीं था ये चैप्टर। लेट्स सी हम इसको कितना आसान बना सकते हैं in this series. I'll make sure that I'll start with basics. I will assume that you don't know anything about permutation combination. We will understand counting techniques. We'll understand how the formula is made from the counting techniques. From that basics, we'll start and we'll take the difficulty level up to the exam level of difficulty. We have almost 8 lectures in this series. I want you to watch each and every lectures. Have pen and paper when you're watching the lectures so that you can make best out of it. So let's get started. Now, permutation combination या फिर हम इस चैप्टर को बोल सकते हैं अरेंजमेंट एंड सिलेक्शन. Permutation stands for arrangement and combination we will use wherever we have selection. Okay? और हम लोग इस कॉन्सेप्ट को पहले सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से. सो आई विल we will get back to the principle of counting, but before that, let's take some example and understand how do you come to the conclusion that this particular question has arrangement and this particular question has selection. Yes, you need to conclude that because in question it will most of the time it's not very clear that this is the question for selection and this is the question for अरेंजमेंट. ओके, सो हमें खुद से एग्जाम्पल लेके समझना होगा, अपने दिमाग में प्रोसेस करना होगा, लॉजिकल रीजनिंग लगाना होगा, एंड देन वी हैव टू कम टू द कंक्लूजन दैट दिस इज फॉर अरेंजमेंट एंड दिस इज फॉर सिलेक्शन. ठीक है, आई होप माई मैसेज इज क्लियर. सो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल हियर. नाउ लेट्स से you have there is a coach um, want to form a cricket team of 11 players, right? Out of 16 players. In how many ways can the coach form a team? ये पता करना है. अब ये क्वेश्चन सिलेक्शन का है या अरेंजमेंट का है, आप बताओ. से यू आर अ कोच. अब आप being a coach of a team, if you want to form a team of 11 players, cricket team of 11 players out of 16, तो आप क्या करते हो उस वक्त? सिलेक्शन करते हो या अरेंज करते हो? सिलेक्शन करोगे, राइट? You have 16 people standing, 16 players standing in front of you, and you are selecting out of 16, you're selecting 11. So it's the case of selection, right? In the question, in the statement, there is nowhere it's mentioned that it is question of selection. But हमें समझना पड़ेगा कि ये सिलेक्शन है या अरेंजमेंट है. Clear? Let's take another example. Now you want to form a batting order. So the coach decided to form a batting order. Batting order. अब समझो बात को कि you have, let's say, player 1, player 2, player 3, player 4, player 5, and so on up till player 11. अब इसका बैटिंग ऑर्डर फॉर्म करना है. सो सपोज if you change it to case where player 4 is going as the opener and player 3 is going to play with player 4. Okay, now these two players are openers और बाकी के players अभी they are down the line, right? So now this is a different batting order, right? Order. So wherever order matters, wherever you need to arrange, we apply what? Permutation. Okay? Keep in mind, ये बहुत ही golden statement है for this particular chapter. Wherever order matters, we apply permutation. Wherever order matters, we apply permutation. हाँ, अभी permutation क्या होता है, क्या फॉर्मूला है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, we have not studied that. You don't have to get into that kind of detail. It's a long way to go यार. अभी हम लोग उसको we are going to understand what is factorial, then we are going to see what is permutation formula or so. Long way to go. No worry. आराम से, have patience. But so far, for now, you just need to understand that if it is selection, we need to apply combination. जैसे आपने देखा होगा NCR इस तरह से दिखता है. और चलो लिख देता हूँ फॉर्मूला में.
बट इस फॉर्मूले को और डिटेल में समझने की हमें जरूरत नहीं है इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। जरूरत है पर नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। ओके। परमिटेशन, परमिटेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एन पी आर विच इज व्हाट? एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अभी हम लोग ये भी सीखेंगे फैक्टोरियल क्या होता है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर सेकेंड का हम लोग ये देखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। बट फॉर नाउ दिस मच शुड बी इनफ टू यू टू अंडरस्टैंड कि ये चैप्टर है क्या। सो व्हाट आर वी स्टडिंग? We are studying arrangements and selection. What are we studying? We are studying arrangements and selection. ठीक है, जिसको हम लोग एक मैथमेटिकल टर्म में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। ठीक है, सो कीप इट इजी फॉर यू। वी आर स्टडिंग व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड सिलेक्शन ऑफ थिंग्स। ये हम लोग पूरे सीरीज में यही पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, okay, now let's see what is principle of counting. This is the core of permutation combination. This is the core of arrangement and selection. अगर हमें ये अच्छे से समझ में आ गया तो पूरा लेक्चर, पूरे पूरे पूरा चैप्टर, नॉट लेक्चर, पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ओके, राइट, चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। लेट्स से Mohan has three pants and two shirts. In how many different pairs of a pant and a shirt can he dress up with? Three pants, two shirts. अभी let's say हम लोग um, and I'm assuming all of you are beginners in this chapter. Okay, तो मैं बहुत आराम से easy steps करके आपको समझाऊंगा. So let's say pants are P1, P2 and P3. Okay, and shirts are S1 and S2. Now we need to make the combination. तो क्या कर सकते हैं हम लोग? मोहन क्या कर सकता है? He can use the pant 1 with shirt 1. He can use pant 2 with shirt 2, shirt 1. एक एक शर्ट को हम लोग अभी कांस्टेंट रख रहे हैं। ओके, शर्ट को हम लोग कांस्टेंट रख रहे हैं एंड एक शर्ट के साथ हम लोग पैंट के सारे वेरिएशन काउंट कर रहे हैं। फिर दूसरे शर्ट के साथ पैंट के सारे वेरिएशन काउंट करेंगे। या और यू कैन डू अदर वे राउंड, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। मतलब other way around in the sense you can fix one pant and you can count both shirts, then second pant you can count both shirts, ऐसा भी कर सकते हो, whichever you want to do is fine. Okay, so pant 1 shirt 1 के साथ, pant 2 shirt 1 के साथ, pant 3 shirt 1 के साथ, pant 4 नहीं, pant 4 नहीं, अभी pant 3 तक ही है। फिर pant 1 ये हो गया शर्ट 2 के साथ, फिर पैंट 2 ये हो गया शर्ट 2 के साथ, फिर पैंट 3 ये हो गया आपके पास शर्ट 2 के साथ। सो हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस? अब देखो यहाँ पे हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस वी कुड फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एज, ये काउंटिंग कर रहे हैं हम लोग। हाँ, अभी परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हमें जो चैप्टर का नाम समझना, हमने समझ लिया कि अरेंजमेंट और सिलेक्शन होता है। अभी हमें फोकस करना है काउंटिंग टेक्निक पे। ओके, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे। ठीक है, तो ये हम अलग चीज समझ रहे हैं। ये जो मैंने डेफिनेशन बताया था दैट इज जस्ट टू गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एक बेसिक, एक कोर है जिसको हम लोग शुरू से समझ रहे हैं। सो डोंट गेट इनटू फॉर्मूला एट ऑल। ओके, सो हुआ क्या यहाँ पे? यू हैव टोटल हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल? 6. ना मैंने से कॉम्बिनेशन, डोंट फील ये एनसीआर वाला कॉम्बिनेशन ना, ये वाला इस फॉर्मूले वाला कॉम्बिनेशन, डोंट फील दिस वाला कॉम्बिनेशन। ओके, या कॉम्बिनेशन मतलब एक जनरल इंग्लिश टर्म है। कॉम्बिनेशन कंबाइन करके हम लोग कितने अलग अलग पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ओके, सो जस्ट कीप इट ओनली अप टू दैट। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पे आपके पास पैंट्स कितने हैं? 3, शर्ट कितने हैं? 2, टोटल 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। राइट, और एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आपको लेट्स से Um, there are three cities in Goa. We are situated in Goa, so I'll give you that example. Let's say uh, you want to go to Margao from Panjim. So there is a city in Goa named Panjim. Okay, it's the capital of Goa.
and from Panaji we call it sometime. Okay. So from Panjim to Margao is another city in South Goa. Okay. So you are going from Panjim to Margao. Now you are going via another city called Ponda. So Ponda is also one city in Goa. Okay. Now ऐसा करते हैं, लेट मी चेंज द सिचुएशन। सपोज आप यहाँ पे पोंडा सिटी पे हो, ठीक है? पोंडा सिटी पे हो। नहीं नहीं, पहला ही वाला ठीक था। सपोज आप पैंजिम पे हो, पैंजिम सिटी पे हो। ऑलराइट। अब पैंजिम से आपको जाना है मारगांव। पैंजिम से कहाँ जाना है आपको? मारगांव। सो मारगांव यू हैव टू गो वाया पोंडा। नाउ फ्रॉम पैंजिम टू पोंडा देर आर थ्री रूट्स। ओके, एंड फ्रॉम पोंडा टू मारगांव देर आर फोर रूट्स। ऑलराइट। So let's name them. This is A, B, C. This is P, Q, R, S. Name of routes. Okay. Now the question is, in how many ways can you reach from Panjim to Margao? Panjim to Margao. That's the question. Okay. Shall I repeat this? You are at Ponda. Sorry, you are at Panjim, and from Panjim you have to reach to Margao. This is your last destination, and this you have to travel, this you have to travel via Ponda. So you have to reach to Ponda station, and from Ponda station you have to reach Margao. There are four ways you can go from Panjim to Ponda, and there are three ways you can go from Panjim to Ponda, and from Ponda to Margao you have four ways. ठीक है, तीन वे यहाँ पे है, ये तीन वेज है, यहाँ पे आपके पास चार वेज है। क्वेश्चन इज हाउ मेनी वेज यू कैन रीच फ्रॉम पैंजिम टू पोंडा। आप क्या करोगे? कैसे काउंट करोगे? आप क्या बोलोगे? With A, if you choose A from here, you can choose what? P, Q, R, S with A, correct? Similarly, with B, again you can choose, if you choose B from here, Panjim to Ponda, then from Ponda to Panjim, Margao, again you have any one of the four ways. So if you choose B from Panjim to Ponda, ध्यान से सुनना और इसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे, बहुत ईजी है। मैं जब कंक्लूड करूंगा तो आपको आसान रहेगा, अभी समझो, प्रैक्टिकली समझो। सो फ्रॉम Panjim to Ponda, if you're choosing B, then from Ponda to Margao, you can choose again either one of the four. So P, आप B के साथ Q रूट ले सकते हो, आप B से के साथ R रूट ले सकते हो, आप B के साथ S रूट ले सकते हो। And same you can do when you're choosing C as the route from Panjim to Ponda, right? तो C के साथ आप क्या यूज कर सकते हो? P, Q, R, S, right? So how many total ways you can reach from Panjim to Margao? How many total ways you can reach Panjim to Margao? If you count this, you have one, two, three, four. And this four is repeating three times. One with A, one with B, one with C. Yeah? So total number of routes, if you count, there are 12 routes. ठीक है? Okay. Yeah? Easy है. अच्छा, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो क्या कि सर, और बहुत से आप लोगों में से बहुत से लोगों ने ये कर भी लिया होगा, जो सॉल्व कर भी लिया होगा, जिस तरह से मैं अभी आपको बताने वाला, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो फ्रॉम पैंजिम टू पोंडा, पैंजिम टू पोंडा यू हैव थ्री वेज। फ्रॉम पोंडा टू मारगांव यू हैव फोर वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज यू शुड हैव इज 3 into 4, 12। या बहुत से लोगों ने ये भी किया होगा, ये भी करेक्ट है। ओके। अब काउंटिंग टेक्निक का इससे क्या रिलेशन है? इससे ये रिलेशन है that whenever you have some possibilities, and with those number of possibilities you are having a conjunction,
हम लोग कंजंक्शन दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए कंजंक्शन, एक ग्रामर में वर्ड होता है कंजंक्शन, वो यूज करते हैं। ओके, जंक्शन, जंक्शन को कंजंक्शन। ओके, सो एक हम लोग यूज कर इफ एंड देन यूज करते करते हैं, एंड यूज करते हैं, और यूज करते हैं, और बहुत सारे यूज करते हैं। यहाँ पे इस चैप्टर के लिए हमारे पास, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर, and or these two conjunction will be used the most, or I should say these are the only conjunction we are going to use in this particular chapter to have their equivalent mathematical sign, to have their equivalent mathematical sign। अभी समझना, देखो हो सकता है आपको शुरू में बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा हो, बट समझना आसान हो जाएगा। वंस वी आर डन विद दिस लेक्चर आपको बहुत सब कुछ समझ में आ जाएगा, बहुत नहीं सब कुछ समझ में आ जाएगा। कम बैक टू दिस। सो नाउ इफ आई टेक द सेम सिचुएशन, अब मैं इसको एज एज वन इंटायर सेंटेंस, कैसे मैं इसको एक सेंटेंस के फॉर्म में बोल सकता हूँ दैट आई पैंजिम से पोंडा जाना है। सो आई विल से इफ आई वांट टू रीच फ्रॉम पैंजिम टू मारगांव, if I want to reach from Panjim to Margao, I have three ways to reach from Panjim to Ponda, and and then I have to take either one of the four ways from Ponda to Margao. Shall I say this again? If I form a statement of if I try to say in one statement uh, about the solution of this question, Panjim to Margao, in how many ways I can reach from Panjim to Margao, I'll say I have three ways to reach from Panjim to Ponda, and I have four ways to reach from Panjim to Margao. So, what is the conjunction I'm using? I'm using conjunction what? And between these two conditions, Panjim to Ponda and Ponda to Margao, right? What conjunction I'm using? I'm using and. And whenever in permutation, combination, or probability, I repeat, whenever in permutation, combination, or probability, if you are using conjunction as and between the two situation, two possibilities, we use mathematical sign as multiplication। ये ध्यान रखना। ओके, ध्यान रखना ये, ठीक है। और आपने प्रैक्टिकली देखा भी है, ये मैंने ऐसा कुछ रॉकेट साइंस तो बताया नहीं, ये तो आप खुद भी आपने मल्टीप्लाई ही यूज किया होगा। इफ यू हैव ट्राइड दिस डायरेक्टली विदाउट राइटिंग ऑल द पॉसिबिलिटी, आपने भी ये 12 अगर सारी पॉसिबिलिटी को लिखे बिना उस कंक्लूजन पे आए होंगे तो आपने भी मल्टीप्लिकेशन यूज किया होगा। सो हियर एंड मीन्स मल्टीप्लिकेशन, राइट? सेम थिंग you can see here also amongst making the combination when Mohan is making combination of two pants, three pants and two shirts. Mohan is making combination of three pants and two shirts. तो यहाँ पे भी आप क्या बोल सकते हो, ये सिक्स क्या है? सिक्स इज नथिंग बट three possibilities of pants and two possibilities of shirts. So the total combination he can make is what? Six. It's and. मैं आपको और भी एग्जांपल दूंगा जहां पे जब हम लोग और यूज करेंगे। सो हैव पेशेंस, हैव पेशेंस। सो मल्टीप्लिकेशन साइन, हाँ, we are using and because see to make pair of a pant and a shirt, and we use what? Multiplication। क्लियर है? क्लियर है? और एप्लीकेशन देखो, और एप्लीकेशन देखो, आई एम श्योर बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे दिमाग में, बट ट्रस्ट मी, लेट मी कंप्लीट द लेक्चर, देन आपके जितने भी कंफ्यूजन दिमाग में उठ रहे हैं सब सॉल्व अपने आप हो जाएंगे। सो हैव पेशेंस। एक और एग्जांपल लिखते हैं। सो हियर मोहन हैज थ्री पैंट्स, टू शर्ट्स एंड फोर पेयर्स ऑफ सॉक्स। हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ a pant, a shirt and a pair of socks can he dress up with? So to for Mohan to dress up, he required a pant and a shirt and a pair of socks. Agree? So and so if I want to count the number of pairs, what are we doing? We are using principle of counting. So if I want to
count the number of pairs possible. Okay, number of ways he can dress up. Number of ways he can dress up. If I want to count, how will I count? I'll say he has three pants, and he has two shirts, and he has four socks. So total combination he can total number of ways he can dress up with is equal to 3 twos are 6, 6 fours are 24. 24. खैर ये 24 का कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट क्या है? क्या आपको ये समझ में आया? Whenever you are making the combination and you have and as the conjunction, we are going to use what? Multiplication sign. Okay, याद रहेगा? And के लिए हम क्या करने वाले? Multiplication. All right. Now let's go to the same example. ये वाला पैंजिम पोंडा मारगांव फिर से ड्रॉ करूँ क्या? चलो अच्छा क्लीन करके बढ़िया से फिर से ड्रॉ करते हैं. So पैंजिम and then you have Ponda and you have Margao. Okay. Again, there are three ways here and there are four ways here. Okay. अब आपका कंडीशन क्या है ना? आप यहाँ पे हो पोंडा में. देखो आप कहाँ पे हो वो जरूरी नहीं है. अब इम्पोर्टेंट ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझो, सिचुएशन को समझो. हाँ ये थोड़ा माल न्यूट्रिशन लग रहा है बट ठीक है समझ जाओ. ओके. सो आप यहाँ पे हो पोंडा में एंड यहाँ से पेंजिम जाने के लिए आपके पास यू हैव गॉट थ्री वेज ABC and for Margao you have four ways PQRS. Okay, you are at Ponda. Now अभी आज है आपकी छुट्टी. Okay, today is holiday and you want to meet your friends. You have one group of friend in Panjim and one group of friend in Margao. You can go and meet. You have no commitment to either one of them. आप किसी से भी जाके मिल सकते हो. ये कंडीशन है. Okay. So you have some friends in Panjim, some friends in Margao. In how many ways you can meet your friends? In how many ways you can meet your friends? How many ways you can reach to meet your friend? I think this is a better formation of statement. How many ways you can reach to meet your friends? Okay. आप पैंजिम जा सकते हो या आप मारगांव जा सकते हो. You can go to Panjim to meet your friends or you can go to Margao to meet your friends. Okay. In how many ways you can reach to meet your friends? You can, if you're going to Panjim, you can go by three ways: A, B, C. Or if you're going to Margao, you can go to meet them by any one of the four routes. Okay, right. अब यहाँ पे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को छोड़ो, आप इन जनरल मैथ्स को छोड़ो, आप इन जनरल बताओ यार, थोड़ा लॉजिक लगा के बताओ. क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए? सोचो, क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई होना चाहिए? Definitely not. What will you say? You will say, I can go to meet my friends in to Panjim by either by A, B, C. So one, two, three routes, or I can take the other four routes, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So I have seven routes to take. I can take either one of these routes, right? I have total how many routes to take? Seven routes to take. आया समझ में? मैं फिर से बोल रहा हूँ. फॉर द टाइम बिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर हटा दो. काउंटिंग प्रिंसिपल को भी साइड में रखो. आप एक जनरल लॉजिक लगा के बताओ. You can go to, you are at Ponda and you can go to Panjim to meet your friends, or you can go to Margao to meet your friends. You have four ways to reach to Panjim and three ways to reach to Panjim and four ways to reach to Margao. You can take either one of these routes to reach and meet your friends. In how many ways you can reach and meet your friends? You will say what? Total seven ways. I can take I can take either A, B, C, P, Q, R, S. Total seven ways. You can use either one of them. Right? अगर आपको ये समझ में आया और आप मुझसे अग्री करते हो कि ऐड करना चाहिए, जैसे मान लो मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, पैंट शर्ट वाला. पैंट तो आपने पहन रखी है, ये मान के चलो आपने पैंट पहन रखी है.
ओके, अब आप या तो आपके पास 3 शर्ट्स हैं या और आपके पास एंड मैं अभी एंड बोल रहा हूँ, एंड यू हैव 4 टी-शर्ट्स। अब आपने पैंट पहन रखी है और इनमें से कोई भी शर्ट और इनमें से कोई भी टी-शर्ट आपके कॉम्बिनेशन को फिट बैठेगी, ओके? आपको ये बताना है इन हाउ मेनी वेज कैन यू हैव अ टॉप ऑन योर पैंट? हाउ मेनी वेज यू कैन हैव अ टॉप ऑन योर पैंट? टॉप मतलब शर्ट भी हो सकता है, टी-शर्ट भी हो सकता है। तो आप क्या बोलोगे? अरे सर, ये तो बहुत सिंपल है, पैंट मैंने पहन रखी है। मैं या तो इन 3 शर्ट्स में से कोई सा यूज़ कर सकता हूँ या फिर इन 4 में से कोई सा एक यूज़ कर सकता हूँ, कोई सा एक यूज़ कर सकता हूँ, राइट? कोई सा भी एक यूज़ कर सकता हूँ, करेक्ट? हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको टी-शर्ट पहनना है, उसके ऊपर शर्ट डालना है, शर्ट डाल के उसके ऊपर टी-शर्ट पहनना है, ऐसा तो है नहीं, राइट? सो और ऐसा अगर आप फैशन करते भी हो तो इस क्वेश्चन में नहीं है, हाँ? अगर आप शर्ट के ऊपर टी-शर्ट पहन के जाते भी हो तो इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन में या तो आप शर्ट पहनो या फिर टी-शर्ट पहनो, ओके? सो हाउ मेनी वेज यू कैन गेट रेडी? यू कैन से वेरी सिंपल वे, सर पैंट तो मैंने पहना हुआ है, या तो मैं 3 में से कोई भी शर्ट पहन लूँ या फिर 4 में से कोई भी एक टी-शर्ट पहन लूँ। सो टोटल 7 वेज आई कैन ड्रेस अप, राइट? तो आपने क्या बोला? आई कैन वेयर आइदर वन ऑफ द 4 शर्ट्स और I can wear either one of the either one of the 3 shirts, my bad. Either one of the 3 shirts or I can wear either one of the 4 shirts. राइट? आपने क्या बोला? और ये एंड जो है ना ये अलग है। ये एंड कौन-सा वाला था? क्वेश्चन फॉर्मेशन के लिए। ये सॉल्यूशन फॉर्म किया हमने। क्वेश्चन फॉर्मेशन में तो यही बोलोगे ना, यू हैव 3 शर्ट्स एंड 4 टी-शर्ट्स। 3 शर्ट्स एंड 4 टी-शर्ट। यू हैव 3 शर्ट्स एंड 4 टी-शर्ट। आप क्वेश्चन फॉर्मेशन में तो ये बोलोगे, बट सॉल्यूशन फॉर्मेशन में कैसा सेंटेंस बना रहे हो? सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए कैसा सेंटेंस बना रहे हो? आप बोल रहे हो कि मैं इन 3 में से कोई भी एक शर्ट पहन सकता हूँ या फिर इन 4 में से कोई भी एक टी-शर्ट पहन सकता हूँ। आई कैन वियर वन ऑफ द शर्ट अमंगस्ट द 3 शर्ट्स और आई कैन वियर आइदर वन ऑफ द टी-शर्ट आउट ऑफ 4 टी-शर्ट्स, राइट? और what are you using? Or as the conjunction. So wherever you have or, ये naturally क्या ये naturally निकल के नहीं आ रहा है? इसके लिए क्या आपने कुछ फॉर्मूला लगाना पड़ा? naturally निकल के आ रहा है ना प्लस। तो ये ध्यान रखना, whenever you have or as the conjunction, you use what? Plus. Okay? You use what? Plus. और यही permutation combination और probability का रूट है। यही permutation combination और probability जब हम आगे पढ़ेंगे, यही उसका रूट है, यही काउंटिंग प्रिंसिपल है। When you have and as the conjunction between the two sentence, you use multiplication. When you have or, you are going to use what? Plus. बहुत आसान इजी शब्दों में मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नहीं भी आया हो तो डोंट वरी, वी हैव लॉन्ग वे टू गो। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, आपको आ जाएगा समझ में। चलो, यहाँ पे क्या है? मोहन हैज 3 पैंट्स, 4 टी-शर्ट्स एंड 2 शर्ट्स। अब देखो क्वेश्चन फॉर्मेशन में तो एंड ही लिया है, तो अभी इसको आप इसके हिसाब से मल्टीप्लाई मत करना। सॉल्यूशन फॉर्म करते वक्त आप एग्जैक्टली क्या कंजंक्शन यूज कर रहे हो, यूज द मैथमेटिकल साइन अकॉर्डिंगली, ओके? सो हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ अ पैंट एंड अ शर्ट और अ शर्ट, अ पैंट एंड अ शर्ट और अ पैंट एंड अ टी शर्ट कैन ही ड्रेस अप विथ? पॉज। सॉरी, 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 कंटिन्यू। तो आप क्या बोलोगे? आप ये बोलोगे, सर यहाँ तो हमें 2 पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है कि मैं किसी भी एक 3 में से किसी भी एक पैंट के साथ कोई भी एक शर्ट पहन सकता हूँ और किसी भी एक पैंट के साथ कोई भी एक टी-शर्ट पहन सकता हूँ। या समझ में आ रहा है आपको?
let's say let's form a proper sentence for this solution. So to get for him to get dress up, he can use either one of the three pants with or I would say and a shirt to get ready, or he can use either one of the three pants and a t-shirt to get ready. या so इन दोनों के बीच में तो लगा and, और इन दोनों पॉसिबिलिटीज के बीच में क्या लगा और, है ना? Either he can use a combination of pant and shirt or he can use a combination of pant and टी-शर्ट. अब ये मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं बताया. आप इसको नेचुरली बोल के देखो कि आप यहाँ पे और अच्छा लग रहा है कि एंड. अभी मैं आपको दूसरा सेंटेंस बोल के बताता हूँ. आप बताना कि ये ठीक साउंड कर रहा है क्या? मतलब आपके अंदर से मन मन नहीं करेगा यार ये सर क्या बोल रहे हैं? दिस इज नॉट गोइंग द राइट वे. सो इफ आई से दिस वे, he can wear he can make combination of he can get dressed up by either one of a pant and a shirt and a pant and a टी-शर्ट. ये अच्छा साउंड कर रहा है क्या? सच बताओ, दिल पे हाथ रख के बोल दो अच्छा साउंड कर रहा है, गलत नहीं है. A pant, he can dress up by wearing a pant and a shirt and a pant and a टी-शर्ट. ये नहीं साउंड कर रहा है ना. अच्छा, दूसरा वाला सेंटेंस जो हमने पहले यूज किया, अभी वो फिर से सुनो. He can dress up by wearing what? A pant and a shirt or a pant and a t-shirt. ये ठीक साउंड कर रहा है? A pant and a shirt, a pant and a shirt or a pant and a t-shirt. ये ठीक साउंड कर रहा है ना? सच बोलो. So in this permutation combination you need to, or sorry, डिस्टर्ब कर दिया मैंने, इंटरप्ट कर दिया. In the counting technique, or the number of ways you want to count the solutions, in such cases it is important to understand, and you will naturally get it, where you should use the conjunction and where you should use the conjunction or. Wherever it is and, we use multiply. Wherever it is or, we use add. So we are going to multiply this. तो यहाँ पे ये हो गए 6 कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हो गए हमारे 12 कॉम्बिनेशन. दोनों को हम क्या करेंगे? दोनों के बीच में है और, तो दोनों को कर देंगे ऐड. 6 + 12 हो गया 18. सो दिस इज योर आंसर. फिर से बोलता हूं, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट काउंटिंग प्रिंसिपल समझना इंपॉर्टेंट है. क्लियर? चले आगे. एंड और समझ में आ रहा है? तो और के लिए हम क्या यूज करेंगे? प्लस. अब इसको लिख लो यार, इसको लिख लो अच्छे से. ये जो हमने यहाँ पे, कहाँ गया, अरे अच्छी जगह लिखा था ना हमने. यस यस, ये रहा. इस चीज को लिख लो अच्छे से. ये पेंजिम पॉन्डा नहीं, ये इस चीज को लिख लो अच्छे से. कंजंक्शन एंड या तो मल्टीप्लाई, और या तो प्लस. ओके, चलो चलते हैं आगे. चलते हैं आगे. मैं आपको इतना सिंपल बना दूंगा इसको ना कि आप, मजा आ जाएगा आपको. आप बोलोगे कि यार स्कूल में भी हमें ऐसे ही पढ़ना है. वहां पे क्या था, हमें अपने एनसीईआरटी बुक्स या स्टेट बोर्ड बुक्स के हिसाब से ही पढ़ना था. दैट्स ओके. यहाँ पे इट्स ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. योर द वे यू आर सॉल्विंग डजंट मैटर, योर सोल्यूशन शुड बी करेक्ट. ओके, स्टेप्स मार्किंग नहीं मिलता है, स्टेप मार्किंग नहीं मिलता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सो हियर आई हैव टेकन फ्यू मोर एग्जांपल्स. हाउ मेनी थ्री डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम 1 2 3 4 5 digits? Okay, there are two questions here. First, where repetition of digits is allowed. अब ये क्या बोल दिया है यार, ये क्या आ गया, ये क्या अचानक से अजीब सा कुछ आ गया. मैं समझाता हूँ. देखो, जब भी डिजिट्स है ना, आपको थ्री डिजिट नंबर फॉर्म करना है. आप ये मान के चलो, आपने आपका फोन में एक नंबर लॉक लगा रखा है जिसमें 3 डिजिट एंटर करके आपका फोन खुल जाएगा. ठीक है. हाँ, मुझे पता है यूजुअली वो या तो 4 डिजिट का होता है या 6 का होता है, पर मान लो आपका एक फोन में फोन में आपने लॉक लगा रखा है एंड यू एंटर 3 डिजिट्स टू अनलॉक. नाउ, do you agree with me that lock your lock code could be 2 2
2 as well. It could be 1 3 1 as well. ऐसा भी हो सकता है ना. So whenever it is a number or digits, digits may repeat. Correct. So whenever you need to form any number, आपको ये क्लैरिटी चाहिए कि रिपीटेशन अलाउड है या अलाउड नहीं है. ठीक है. तो हमने दोनों केस ले लिया. पहला लिया रिपीटेशन इज अलाउड, सेकंड इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. ओके. सो हाउ टू सॉल्व दिस. अगेन वी आर गोइंग टू यूज व्हाट, काउंटिंग टेक्निक. ये क्वेश्चन है काउंटिंग टेक्निक को सॉल्व की टेक्निक से सॉल्व करना है. अभी सोचो, एक बात बताओ. फर्स्ट कंडीशन डिजिट रिपीटेशन इज अलाउड. अभी एक बात बताओ, ये आपके पास 3 places है, राइट. And you got, and question said these are the only digits you can use. How many of them? One, two, three, four, five. Five of them. So you can use either one of the five at the first place to enter. आप 9 यूज कर सकते हो, 8 यूज कर सकते हो, 4 यूज कर सकते हो, 3 यूज कर सकते हो, 7 यूज कर सकते हो. So basically you can use either one of the 5 digits to fill the first place. एंड ये और होगा क्या, बोलो. ऐसा तो नहीं ना कि आप या तो फर्स्ट प्लेस फिल करो या फिर सेकंड प्लेस फिल करो. ऐसा तो नहीं ना. यू नीड टू फिल फर्स्ट प्लेस एज वेल एज सेकंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस एज वेल एज सेकंड प्लेस, एंड थर्ड प्लेस एज वेल. एंड इज द करेक्ट कंजंक्शन हियर. आप बोल के देखो, आपको ये ठीक लग रहा है क्या. देखो, और अगर यूज करोगे तो क्या हो जाएगा. सपोज इफ आई से आई कैन फिल दिस प्लेस इन 5 ways, फर्स्ट प्लेस इन 5 ways और सेकंड प्लेस इन 5. अरे और कैसे. अगर आप और बोलोगे तो इसका मतलब पहला प्लेस खाली रहेगा व्हेन सेकंड प्लेस इज फिल्ड. बट दैट्स नॉट करेक्ट. नो, यू नीड टू फॉर्म अ 3 digit नंबर. 3 digit नंबर को फॉर्म करने के लिए तीनों जगह पे आपको कुछ डिजिट्स चाहिए, राइट. So, which conjunction is fitting the best here? And. So, I can fill the first place in 5 ways. कौन से 5 ways? I can use either one of the 9, 8, 4, 3, 7. तो आप समझ रहे हो, ये नंबर क्या है, ये डिजिट्स क्या है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है. कितने हैं उससे फर्क पड़ रहा है. ये 9 को हटा के अगर मैं 1 भी कर देता ना, तो भी आंसर सेम ही होता. ओके. सो किससे फर्क पड़ रहा है. हाउ मेनी डिजिट्स आर अवेलेबल टू फिल द प्लेस. इट्स नॉट अबाउट विच आर द डिजिट्स अवेलेबल टू फिल द प्लेस. ऑलराइट. सो this place can be filled in 5 ways, and the second can be filled in 5 ways, and the has to be filled. I mean, third has to be filled. So it can be filled in how many ways? 5 ways. Any of these digits can take the place because the repetition of digits is allowed, right? So how many ways you can form such number? 5 into 5 into 5, 125, 5 cube, कुछ भी बोल सकते हो. क्या आपको ये solution समझ में आया? हाँ, सोच के देखो. यहाँ पे हमने क्या बोला है. वी आर यूजिंग कंजंक्शन एज एंड. और क्यों नहीं यूज करेंगे. और का मतलब ऐसा होगा कि इफ आई से आई फिल द फर्स्ट प्लेस और आई फिल द सेकेंड प्लेस, इसका मतलब होगा अगर फर्स्ट प्लेस फिल किया तो सेकेंड प्लेस फिल नहीं कर सकता, सेकेंड किया तो फर्स्ट नहीं कर सकता. पर ऐसा तो नहीं है. टू फॉर्म अ 3 digit नंबर यू नीड टू फिल ऑल दीज 3 places, राइट. सो इट इज एंड. सेकेंड केस क्या है. ये भी एंड का ही है, बट आप समझो कि इसमें अब डिफरेंस क्या है. हम लोग धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग नॉलेज अपना बढ़ाते जा रहे हैं इस चैप्टर को लेके. तो समझो, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड. रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स नॉट अलाउड. इस केस में क्या होगा. इस केस में ये होगा, देखो, आपके पास यू हैव 3 places बिकॉज यू वांट टू फॉर्म अ 3 digit नंबर. सो फॉर फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फॉर फर्स्ट प्लेस, अच्छा डिजिट्स क्या थे. 9, 8, 4, 3, 7, 4, 3, 7. सो आई कैन फिल द फर्स्ट प्लेस किसी भी जगह से. आप फर्स्ट, ऐसे जरूरी नहीं कि फर्स्ट प्लेस से स्टार्ट करो, थर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ओके. अब आप समझते हो ना, मतलब आप 3 into 2 लिखो या 2 into 3 लिखो, बात तो एक ही है, 6 ही आने वाला है. सो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी वन ऑफ दिस प्लेस. ओके. सो फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 ways, राइट. नाउ क्वेश्चन सेड रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड. तो कहने का मतलब इन 5 में से जो भी एक डिजिट, विच एवर डिजिट हैज टेकन दिस प्लेस, कैन नॉट रिपीट ऑन द सेकेंड प्लेस.
whichever digit has taken the first place cannot take the second place. If it repeats and if it takes the second place, then repetition allowed हो गया ना. हमें क्या बोला है? Repetition is not allowed. क्लियर है? तो आप भी क्या बोलोगे? सेम चीज आप भी बोलोगे सर यहाँ पे 5 है. अब जो And as I said, it is not about which are the digits. It's about how many digits are there which we can use. How many digits are there which we can use? So we can use 5, either one of the 5. Now, whichever is used here cannot be used on the second place. So second place पे possibility कितनी हो जाएगी? 4. एक से कम हो जाएगी ना यार, सोचो. एक आप यहाँ पे छोड़ गए. The possibility for the second place will reduce by 1 because you have used one of the digits here. Now, out of this 4, you used again one of the digits here out of 4. So the next, for third place, you will have only 3 digits available. क्या ये बात आपको समझ में आई? Yeah. अब एग्जाम्पल लेके देख सकते हो. Let's say out of this 5 place, on the first position you fix 8. तो अब आप 8 यूज नहीं कर सकते हो सेकंड प्लेस के लिए. सो फॉर सेकंड प्लेस योर पॉसिबिलिटी रिड्यूस बाय 1. ठीक है? एंड सो दैट सो ऑन. तो ये हो जाता है आपका 60. आपको याद क्या रखना है? आपको याद क्या रखना है इसमें? समझ में याद है? समझ में क्या आना चाहिए इसमें? Whenever repetition is not allowed, the number of possibility for next position will reduce by 1 because one of them is consumed for that particular place. So number of possibility for the next place should reduce by 1. Right? अच्छा, अभी कंजंक्शन, अभी मैंने तो यहाँ मल्टीप्लाई लगा दिया, पर हम तो सीख रहे हैं, हमें नहीं पता कि मल्टीप्लाई करना है कि ऐड करना है, तो हम बोल के देखेंगे इसको. I can use one of the 5 digits here. अब ये ठीक साउंड कर रहा है क्या? और I can use one of the 4 digits here. जब मैंने और बोला तो मैंने क्या बोल रहा हूँ? जब और बोलता हूँ तो इसका मतलब मैं या तो इस पोजीशन का ध्यान रख रहा हूँ या फिर सेकंड प्लेस का ध्यान रख, या तो फर्स्ट प्लेस का ध्यान रख रहा हूँ या फिर सेकंड प्लेस का. ऐसा नहीं है. क्वेश्चन बोल रहा है 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करो. So you need to take care of first position as well as second position. हाँ, तो क्या और बेहतर साउंड कर रहा है? या फिर if I say I can fill this place, first place in 5 ways and I can fill the second place by 4 ways and I can fill the third place by 3 ways. क्या ये बेहतर साउंड कर रहा है? अब कौन सा बेहतर साउंड कर रहा है इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों. There's no formula to understand by yourself that we should use and or. आप ये खुद से अंदर से बोल के देखो और आप सोचो कि कौन सा बेहतर साउंड कर रहा है, कौन सा करेक्ट साउंड कर रहा है, बेहतर नहीं, कौन सा करेक्ट साउंड कर रहा है. क्लियर? सो आई कैन फिल द फर्स्ट प्लेस बाय 5 ways and I can fill the second place by 4 ways. It's sounding better, right? So what you do in that case? You multiply in that case. Okay? And conjunction के लिए multiply करेंगे, that's how you get 60. Clear? All righto. So now we understood a new concept, repetition allowed, repetition not allowed. Counting principle में उतना ही समझना है, एंड कब लगाना है और कब लगाना है, प्लस कब यूज करना है, मल्टीप्लाई कब यूज करना है. रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन एक नया अपन ने कुछ सीखा है यहाँ पे. आगे बढ़ते चलते हैं, चलो आगे बढ़ते चलते हैं. यहाँ पे और भी एग्जाम्पल है, और भी क्वेश्चन है हमारे पास. हाउ मेनी वेज 5 डिजिट टेलीफोन नंबर में डिजिट रिपीट हो सकते हैं, राइट? So that's why you need question to clear you, question to give you a clarity whether repetition is allowed or repetition not allowed. Using digits 0 to 9. अब एक बात बताओ, टेलीफोन नंबर तो 0 से स्टार्ट हो सकता है ना? हो सकता है. बट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ईच नंबर स्टार्ट विथ 67. ईच नंबर स्टार्ट विथ 67. सो जितने भी टेलीफोन नंबर है वो 67 से ही स्टार्ट होंगे. Okay, so if it is a 5-digit number, 5-digit telephone number, 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit telephone number, पहले यहाँ पे 67 ही आना चाहिए. तो ये तो फिक्स हो गया. कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों. ये 6 पॉसिबिलिटीज नहीं है, ये 6 एक डिजिट है. एक डिजिट है 6 जो फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए, एक डिजिट है 7 जो सेकंड प्लेस पे आना चाहिए. ओके, सो ये फिक्स हो गया. सो द ओनली places you have
where you can apply all the possible combination is ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ, या थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेस पे ही आप कॉम्बिनेशन अप्लाई कर सकते हो। अब बताओ 0 to 9 how many digits are there? 0 to 9 कितने digits है? 10 digits are there, out of which 6 and 7 यहाँ पे आ गया है। अब हमें ये समझना है कि 6 and 7 बाकी जगह पे रिपीट हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे रखी है। ओके, फर्स्ट बोलता है कि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है मतलब पहले जो दो नंबर हमने दो डिजिट फिक्स किए हैं 6 and 7, इवन दे कैन repeat on the third place or fourth place or fifth place, right? So there is no restriction in that case. So third place can take either one of the digit from 0 to 9, including 6 and 7, because repetition is allowed, right? So यहाँ पे कितने हो सकता है? 0 to 9 कुछ भी आ सकता है, मतलब 10 possibilities है। 10 is not the digit, okay? It's number। 10 possibilities है यहाँ पे, and even fourth place has 10 possibilities, and even fifth place has 10 possibilities. सोच के देखो इसको। Pause this video, think about it। होना चाहिए क्लियर ये आपको। ओके, नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं, नॉन रिपीटेशन रिपीटेशन नॉट अलाउड को देखोगे तो पक्का रिपीटेशन अलाउड वाला भी क्लियर हो जाएगा। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड होगा तो उसमें क्या करोगे आप ये बोलोगे सर दे आर 5 डिजिट्स, पहले दो में 6 and 7 फिक्स हैं, उसको हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग 67, वन पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग the first two places filled as 67, one possibility। 67 is not the number of possibility, they are the digits fixed there, so only one possibility। Okay, now when digits are not allowed to repeat, in that case these are not allowed to repeat, in that case 6 and 7 cannot come on the third position, fourth, fifth। so अब 0 to 9 टोटल 10 डिजिट्स में से 6 and 7 टू डिजिट्स आपने यूज कर लिए, टू डिजिट्स is they are used, two digits are already used। So can you use this again? Can you use these two digits again? If you use this again तो ये तो फिर वायलेशन हो जाएगा ना, ये तो फिर पाप हो जाएगा, पाप पाप होगा ना। देखो सोचो यार, ये डिजिट डिजिट शुड नॉट बी अलाउड टू रिपीट। सो कैन यू रिपीट देम हियर ऑन थर्ड फोर्थ फिफ्थ लिस्ट? नहीं। तो आप क्या बोलोगे, 10 में से टू डिजिट्स तो ऑलरेडी यूज हो गए, तो कितने डिजिट बचे आपके साथ, आपके पास 8 डिजिट्स बचे आपके पास विच यू कैन यूज, राइट? सो थर्ड प्लेस पे कितने पॉसिबिलिटी हो सकते हैं? 8। एंड बिकॉज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो हमने पहले क्या सीखा है? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो आप एक एक से पॉसिबिलिटी कम करते जाओ। क्यों कम करते जाओ? क्योंकि इस 8 में से, इन 8 में से एक डिजिट हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। We have used one of this 8 digits on the third position. We can't use the same digit on the next position. We cannot use the same digit on the next position. So for next position, next place, the number of possibility should be one less. So 8 का one less होगा 7. Similarly, यहाँ पे 7 से, out of 7 possibilities, you have used one of the digits there. So for next place, which is fifth place, the number of possibilities should reduce by 1 again। ये होना चाहिए 6। कंजंक्शन आप ध्यान से सोच सकते हो, आपको प्लस करना चाहिए कि मल्टीप्लाई, वहां पे एंड होना चाहिए या और होना चाहिए। बोल के देखो। I mean, you're forming a number, yeah, so it obviously has to be and. We have to fill the third place and fourth place and fifth place। किसी को छोड़ तो नहीं सकते ना। अगर आप और यूज करोगे तो इसका मतलब क्या हो, आप छोड़ रहे हो उसको। सोच के देखो, इफ आई से दिस वे, you can fill the third position or fourth position और fourth position। that means आपको थर्ड को छोड़ के फोर्थ, या तो आप थर्ड का पोजीशन फिल कर सकते हो
या फिर फोर्थ पोजीशन। ये तो ठीक साउंड नहीं कर रहा ना, यू नीड टू फिल बोथ पोजीशंस, राइट? सो इट हैज़ टू बी एंड, मल्टीप्लाई करना चाहिए, राइट? तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका आंसर के नाम पे ये हो जाएगा 1 पॉसिबिलिटी फॉर फर्स्ट 2 प्लेसेस एंड 10 into 10 into 10, 1000 पॉसिबिलिटीज। सो देयर आर 1000 नंबर्स पॉसिबल। ओके, ये आपका आंसर आएगा। यहाँ पे 1 पॉसिबिलिटी फॉर द फर्स्ट 2 प्लेसेस एंड 8, 7, 6 पॉसिबिलिटी फॉर द अदर रिमेनिंग प्लेसेस। हाँ, सो मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हो जाएगा 56 multiply by 6, 6 6 are 36, carry over 3 and 6 5 are 30 plus 3 हो जाएगा 33। So आंसर कितना आ जाएगा? 333। Okay, so how many contact numbers, mobile numbers, contact numbers are possible in such case? Is only 333 numbers are possible. I hope this is clear. I hope आपको काउंटिंग टेक्निक समझ में आ रही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। एक और बहुत सुंदर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। आई नो यू आर टायर्ड। लास्ट क्वेश्चन है, समझ लो अच्छे से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इससे बहुत अच्छी लर्निंग भी मिलेगी, तो समझो ध्यान से। क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 5000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 0 0 3 5 8 7 with no digit appearing more than once. No digit appearing more than once मतलब repetition is not allowed। ठीक है, मैं चाहता हूं आप इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो एक बार and tell me and let's match whether we get the same answer. Okay, all right, let's start. सो अब देखो लॉजिक लगाना दोस्तों। देखो, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी ना बच्चों को इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है ही नहीं। ये चैप्टर डायरेक्ट फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है ही नहीं। सो इफ यू कांट अप्लाई लॉजिक देन इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। इज दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू? वेरी इंपॉर्टेंट। आता ही है ये, आता ही है, तो समझ नहीं होगा, ऑप्शन नहीं है। आई एम सॉरी। ओके, सो यू नीड अ नंबर मोर देन 5000। अब कोई भी नंबर 5000 से ग्रेटर कब दिखेगा बोलो? Either it has to be a I mean, it has to be, first of all, it has to be a 4 digit number or more than 4 digits number, right? अब मोर देन 4 digits क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज आप देखोगे यहाँ पे गिवन डिजिट्स कितनी है, 1 2 3 4 5। सो यू कैन हैव 4 digits number or you can have 5 digits number. Yes, 5 digits number भी हो सकता है, हो सकता है। चलो एक एक को एड्रेस करते हैं हम लोग। पहले 4 digit नंबर को। इफ इट इज अ 4 digit नंबर तो अब आप कैसे पढ़ते हो? आप कैसे पढ़ते हो बोलो? ये होता है आपका यूनिट्स, ये होता है आपका टेंस, ऐसे ही पढ़ते हो ना नंबर को। ये होता है आपका हंड्रेड्स और ये होता है आपका थाउजेंड्स, राइट? सो इफ द नंबर हैज टू बी मोर देन 5000, सो डिजिट 1000 digit कैन नॉट बी लेस देन 5। अगर यहाँ पे मैंने ये 3 से शुरुआत करी, सो 3058 ऐसा लिखा है ना, 305 इनमें से, तो इसको आप कैसे पढ़ोगे? यू विल रीड लाइक 3000 समथिंग समथिंग, 3058। सो if it is 3058, then the number will be smaller than 5000। then the number will be what? Smaller than 5000। क्लियर? और ऐसा तो आप होने दोगे नहीं, राइट? तो आप क्या करोगे इन दैट केस? You need a number more than 5000. So this number can start with either digit 5 or 8 or 7 as per the given digits. या तो 5000 समथिंग होना चाहिए, या फिर 8000 समथिंग होना चाहिए, या फिर 7000 समथिंग होना चाहिए इन केस ऑफ 4 digits नंबर। पॉज करो और अगर नहीं समझ में आया तो इतना पार्ट को फिर से रिवाइंड करके फिर से सुनो, पक्का आ जाएगा समझ में। सो now here for thousands place you only have 3 possibilities। ये हम लोग क्या बोल रहे हैं, कौन कौन से डिजिट आ सकते हैं, और ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, कितने डिजिट्स आ सकते हैं। हियर वी हैव 583, these are the digits can take thousands place, and this 3 here which I am writing representing number of digits can take this place।
ओके, इस थ्री को इस थ्री डिजिट से मैच मत करना. ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई मीन. आई मीन द फर्स्ट पोजीशन कैन बी टेकन बाय आइदर वन ऑफ द थ्री डिजिट्स. क्लियर है? एंड 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 अब हंड्रेड्स तो कुछ कुछ कोई भी ले सकता है, कोई भी ले सकता है, बट रिपीटेशन इज नॉट अलाउड. सो एक डिजिट तो यहाँ कंज्यूम हो गया, इनमें से एक डिजिट तो यहाँ कंज्यूम हो गया, लेट्स से 5, वो नहीं ले सकता है. और इसके अलावा दो डिजिट आपके पास और है, 0 to 3, 0 and 3, वो यहाँ पे 100 डिजिट्स पे, 100 पोजिशन पे आ सकते हैं. तो अगर किसी एक डिजिट ने अपनी कुर्बानी, अपना त्याग दे दिया है, तो भी आपके पास 100 प्लेस के लिए अब कितने पॉसिबल डिजिट्स हैं? अब आप ये मत बोलना कि यहाँ पे 2 पॉसिबल है. अरे 2 पॉसिबल कैसे? 2 तो इनमें से 2 बचा वो, और ये जो 2 हमने 0 3 जो पहले नहीं कंसिडर किया था हमने, because for hundreds for thousands place we can take only either one of these three. Actually there are total 5 of them, right? Now for hundreds place we don't have any such condition. Let's say 5 is assuming 5 is used, so we still have 4 possibilities for hundreds place. आ रहे समझ में? So hundreds position will be can be filled by either one of the 4 ways. अब इसके बाद कोई कंडीशन है ही नहीं, तो ये आप यहाँ पे फिर से 3, यहाँ पे फिर से 2 कर सकते हो, एक-एक रिड्यूस कर सकते हो, बिकॉज़ रिपिटेशन इज़ नॉट अलाउड. ओके, ठीक है? आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख सकते हो, नहीं समझ में आया तो, हालाँकि मुझे लगता है आ जाना चाहिए समझ. So, how many ways you can how many ways you can form a 4-digit number which is more than 5,000 by using this given digits? Is 3 into 4 into 3 into 2. So ये हो गया 12, ये हो गया 6, 6 12 6 12 72. Is that the answer? No. अरे अभी तो बाकी है. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. अभी तो और ये 5 डिजिट भी हो सकता है. बिकॉज़ क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला है कि इफ द नंबर हैज़ टू बी मोर देन 5000 देन यू यूज़ ओनली 4 डिजिट्स, ऐसा नहीं बोला है. यू कैन यूज़ as many digits as given to you in this question. करेक्ट? चलो बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं. 5 डिजिट्स. अभी क्या होगा? 5 डिजिट्स अभी क्या होगा बताओ? यहाँ पे आप बोलोगे सर 5 डिजिट्स है ना, एनी 5 डिजिट नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? ये होगा यूनिट्स, ये होगा टेंस, ये होगा हंड्रेड्स, ये होगा थाउज़ेंड, और ये होगा 10,000. भाई ये तो 10,000 हुआ ना, और कोई भी 10,000 वाला नंबर 5,000 से तो बड़ा ही होगा. कोई भी 10,000 वाला नंबर 5,000 से तो बड़ा ही होगा, सोच के देखो. अगर मैंने 5 डिजिट नंबर ऐसा लिखा 30875, तो ये क्या हो जाएगा? 30,875, मोर देन 5,000, राइट? करेक्ट? तो यहाँ तो कोई चिंता है ही नहीं. एक छोटी-सी हमें कंसर्न है, एक छोटा-सा कंसर्न है. कंसर्न क्या है? ये जो 1000 मतलब ये जो 10,000 5 डिजिट नंबर, ये 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए. यार आप बोलो कोई भी नंबर है, आप क्या 10 को आप क्या 010 लिखते हो क्या? 10 को तो आप 10 ही लिखते हो ना? दैट मीन्स इफ इट इज़ अ नंबर व्हिच यू आर राइटिंग, देन इट कैनॉट स्टार्ट विथ 0. लेकिन आप आपके पास कोई टेलीफ़ोन नंबर है या सिक्योरिटी कोड है, दैट कैन स्टार्ट विथ 0. क्या ये बात समझने के लिए कुछ फ़ॉर्मूला चाहिए आपको? इसमें तो फ़ॉर्मूले की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए. कॉमन सेंस लाग रहे हो. आपका सिक्योरिटी कोड 0 से स्टार्ट हो सकता है, बट आप नंबर जब लिखोगे, कोई भी आप 10 रुपीज़ लिखोगे, तो उसको 010 नहीं लिखते हो ना, राइट? So number you can't start with 0, right? So that means this 10,000 place, ये वाला प्लेस आपका 0 नहीं ले सकता. अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज़ क्वेश्चन में दिया है ना, वो नंबर्स क्या होना चाहिए? 0 3 5 8 7 0 3 5 8 7. So this first position cannot be occupied by 0. So how many possibilities are there for the 10,000th place? 4 possibilities. एंड अब मान लो इनमें से एक हमने यूज कर लिया, मान लो.
देन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर द नेक्स्ट पोजीशन? आप जीरो काउंट कर सकते हो। सो काउंटिंग जीरो, फिर से आपके पास कितनी पॉसिबिलिटीज है? फोर पॉसिबिलिटीज। एंड अब तो कोई टेंशन है नहीं, थ्री पॉसिबिलिटीज, टू पॉसिबिलिटीज एंड वन पॉसिबिलिटीज। मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका सिक्स, ये हो जाएगा आपका 16। आप बोलोगे 16 सीख जा तो मुझे बहुत आसानी से आता है, दिस इज व्हाट 96। ओके, so how many ways you can form a 5 digits number by using given digits is this। अब आप दोनों के बीच में लगाओगे और, तो आपके या तो आप 4 डिजिट नंबर बना सकते हो। कितने 4 डिजिट नंबर बन सकते हैं? 72। या फिर आप 5 डिजिट नंबर बना सकते हो। हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर्स आर पॉसिबल? 96। सो यू हैव 72 4 digits number, or you can make 96 5 digits number. So total how many numbers are possible to form by given digits which are more than 5000? That is 72 plus 96 will be 8, and this is 16, so 168. So I hope you understood this question. Now, what are the learnings from this question? एक तो and और वाला समझ में आया। दूसरा एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग देता हूँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से, वो लिख लो यार। हमने देखो यहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया तो हमने थाउजेंड्स प्लेस से स्टार्ट किया, यहाँ पे हमने 10,000 से स्टार्ट किया। ऐसा जरूरी नहीं दैट यू ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम थाउजेंड प्लेस और लेफ्ट मोस्ट पोजिशन, ऐसा जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है ये समझना, दैट यू ऑलवेज ऑलवेज स्टार्ट अरेंजिंग, लिख लो इसको, अरेंजिंग फ्रॉम द प्लेस फॉर विच you have any condition। यहाँ पे हमारे पास कंडीशन थी, ये लिख लो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। Always start arranging from place for which you have a condition। So we had a condition for thousand place that thousand place cannot take 0 or 3। Here 10,000 place cannot take 0। So we start counting from there, arranging from there, counting from there। आप arranging बोलो या counting बोलो, in this case it is same, right? हाँ, बस I know it's काफी लंबा वीडियो हो गया, but I appreciate all of your attention, time and patience। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ये चैप्टर आपको सिखा के ही मानूंगा, डोंट वरी। मैं हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। सो दिस इज इट इन टुडेस लेक्चर। माय नेम इज श्याम मानव, साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर जहां पे हम सीखेंगे फैक्टोरियल नोटेशन को। ओके, सो आई विल सी यू इन द सेकेंड लेक्चर। टिल देन, stay happy, stay healthy and keep learning। Bye bye।